Hello everyone, very warm welcome to all of you in my channel King Techno. Here guys, we just discuss about the pivot function and pivot table function which is related with the pandas. And before we just start, I just request to you to please subscribe and share my channel as much as you can, please. Thank you. Now we just start the function which is related with the pivot and pivot table function. Guys, before we just start a pivot function, we just explain about what is the pivot. So what is the pivot? It is just a technique to show the record which is related with the our table, means our row and columns values. If we want to customize my values according to myself, then we use the pivot function to show the values related with this. Now I have much of example which is related with the pivot function, but before we just read this line. Function produces pivot table based on 3 columns of the data frame, uses unique values from index columns and fills with values. Means guys, we just related with pivot function. Here we have 3 parameters which is related to the index, columns and values. Means by index we use the label which is used to indexing our tables, and after then if we want to show the columns as the columns name, we just use the column section for this. Now and other one is the values. तो ये हमारे पाइवट फंक्शंस में था कि इसमें हम लोग इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़ 3 तरह के अलग अलग की टर्म्स को लेकर के चलते हैं, जिन टर्म्स पे हम लोग काम कर सकते हैं. इंडेक्स है, कॉलम्स है, वैल्यूज़ है. सो जस्ट थिंक अबाउट योर टेबल, your row and your columns. So if you want to make a index like row, so index में आप उस कॉलम को दे दीजिए जिसको आपको रो वाइज शो करना है. नेक्स्ट वन इज द कॉलम्स. तो कॉलम्स में उस कॉलम को शो करिए जिसका वैल्यू आप एज अ कॉलम नेम चलाना चाहते हैं. एंड अनदर वन इज द वैल्यूज. तो जो बचा हुआ हमारा कॉलम होगा उसकी वैल्यूज जो होगी वो उन जगहों पे शो ऑफ की जाएगी. नाउ वी हैव मच ऑफ एग्जांपल रिलेटेड विद पर्टिकुलर. नाउ okay guys, now see about import pandas as pd d1 equal to tutor classes and countries. Here we have the dictionary which has lot of values like in column in tutor section we have Tahira, Gurjot, Anusha, Jacob and Venkat. Another column has classes which is 28, 36, 41, 32 and 40, and the next columns is the country USA, UK, Japan, USA and Brazil. So here we have 3 columns related with the dictionary, and after then this dictionary which is known as the d1, we just it convert into the dfd variable. So we just see what's about the dfd values. So this is the values of the dfd. means इस डेटा फ्रेम में जिसका नाम DFD है, इसमें हमारी वैल्यूज़ ये हैं जिसमें 3 कॉलम्स मौजूद हैं. फर्स्ट कॉलम इज़ द ट्यूटर एंड ट्यूटर हैज़ द वैल्यूज़ ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जैकब एंड वेंकट. Next one is the classes which has 28, 36, 41, 32 and 40. Another one is the country and the value is USA, UK, Japan, USA and Brazil. Here guys, we just use the pivot function related particular of these values. So now see, this is the pivot function. And remember about the 3 terms which is related with the index. Next one is the columns, next one is the values. So here index is country, column is tutor and values is classes. Means for particular this function we just want to index with the country name, columns with the tutor name and make a values with the classes, and here is the result. Country is the indexed and we have Brazil, Japan, UK and USA. Next, Anusha, Gujarat, Jacob, Tahira and Venkat is the column name. Okay,
एंड द वैल्यूज़ इज़ द क्लासेस. सो हियर वी हैव द वैल्यूज़. तो जहाँ पे वैल्यूज़ आपको मिल रही है, जैसे अनुषा जो है वो जापान के लिए 41 पाई, गुजरात जो है वो यूके के लिए 36 पाया, जैकब जो है वो यूएसए के लिए 32 पाया, तायरा ने जो है वो यूएसए के लिए 28 पाया, एंड वेंकट जो है वो ब्राज़ील के लिए 40 पाया. तो इस तरह से वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे फीड कर दी गई. तो ये हमारे पाइवोट्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द another function related with the pivot, and here guys we just saw that we have only two terms like a index and columns, but where is the values. तो वैल्यूज़ जब नहीं होते हैं तो फिर उस समय क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं. इंडेक्सिंग एक कंट्री से है और कॉलम हमारा ट्यूटर से है, तो बचा हुआ जो वैल्यूज़ था वो कहाँ गया. तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि जो हमारे पाइवोट फंक्शन होते हैं इसमें दो टर्म्स तो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, एक इंडेक्सिंग होती है, एक कॉलम्स होते हैं, है ना. इंडेक्सिंग हमको रो को बता देता है और जो कॉलम्स होता है वो हमारे कॉलम्स को बता देता है. अब जो बची हुई चीज़ें होती हैं, जो बचे हुए हमारे कॉलम्स होते हैं वो हमारे वैल्यूज़ के रूप में यहाँ पे अंदर अपने से आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने लिखी थी वो यहाँ नहीं लिखी है, उसके बाद भी ये जो क्लासेस है ये बचा हुआ टर्म्स था, ठीक ना. बचा हुआ जो वैल्यूज़ था वो हमारा एज अ वैल्यू इसके अंदर अपने से पहुँच जाएगा, एंड दैट्स वाई वी जस्ट गॉट द सेम आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट. Okay, now we just write again import pandas as pd, and here we just make the another dictionary name as a d2, and we have the tutor which has Taira, Gurjot, Anusha, Jacob, Venkat, and again Taira, Gurjot, Anusha, Jacob and Venkat. Again Taira, Gurjot, Anusha, Jacob and Venkat means we have lot of values which is duplicate. Next column has 28, 36, 41, 32, 40, 36, 40, 41, 52, 28, 40, 21, 32, 40 and 41. Here guys you just saw again the duplicate values. Now next one also has the duplicate values, and the another one also has the duplicate values. So what is the need to take duplicate values. यहाँ हम लोग देखेंगे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है उसके थ्रू हम लोग पाइवोट टेबल पे काम कर सकते हैं कि नहीं, पाइवोट फंक्शन पे काम कर सकते हैं कि नहीं. हियर वी हैव द रिजल्ट. दिस इज द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर df2. df2 इज द डेटा फ्रेम विच इज़ कन्वर्टेड बाय d2. ओके, यहाँ पे जो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाए, ये जो नेक्स्ट हमारा चल रहा है d2, देखिए d2 जो चला है ये d2 जो है वो कन्वर्ट करके df2 के अंदर डाल दिया गया, और df2 के अंदर ये न्यू वैल्यूज़ पड़ गई हैं. ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज़ हैं जिसमें आप देखोगे बहुत सारी जो रिडंडेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं वो आ रही हैं, है ना. तो यहाँ पे हमारा पाइवोट फंक्शन काम कर सकता है कि नहीं, इस चीज़ को देखते हैं. तो पाइवोट फंक्शन अगर हमने नॉर्मली चलाया तो यहाँ पे देखिए एरर आने वाला है. क्या एरर आएगा, क्योंकि पाइवोट फंक्शन जब नॉर्मली चलाएंगे तो क्या होगा कि वो इंडेक्सिंग करेगा. इंडेक्सिंग में जब वो देखेगा कि इंडेक्सिंग में जो ट्यूटर हमारा है उसमें ट्यूटर्स में तायरा है तो तायरा 2 या 3 जगह पे आ रही हैं, जो हमारा जैकब है वो 2 या 3 जगह पे आ रहा है, जो वेंकट है वो 2 या 3 जगह पे आ रहा है. तो ये इंडेक्स करने में इसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक ना. तो इस वजह से पाइवोट फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे मल्टी फंक्शंस होते, मल्टी कॉलम्स आते हैं, जहाँ पे मल्टी कॉलम्स आएंगे, जहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम्स आएंगे, वहाँ पे हमारा पाइवोट फंक्शन जो होगा वो काम नहीं कर पाएगा, है ना. नाउ सी द एरर, इंडेक्स कंटेंस डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप. ओके, तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट एंट्रीज जो हो रही हैं उसको ये रीशेप नहीं कर रहा है. तो अब ऐसी जगह पे हमको क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आएगा पाइवोट टेबल फंक्शन, ठीक ना. तो पाइवोट टेबल फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाइथन पांडास पाइवोट टेबल, और जो आपके सामने सिंटैक्स है वो है pandas डॉट पाइवोट टेबल. यहाँ पे देखिए हमारा पहले पाइवोट फंक्शन चल रहा था. हियर यू जस्ट सी पाइवोट फंक्शन, बट नाउ वी हैव पाइवोट टेबल फंक्शन, है ना. अंडरस्कोर लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक. एंड आफ्टर देन वी हैव लॉट्स ऑफ वैल्यूज़ इनसाइड द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे डेटा है, वैल्यूज़ है, इंडेक्स है, कॉलम्स है, एग्रीगेट फंक्शंस हैं. एग्रीगेट फंक्शन मीन, काउंट, सम, ऐसे बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. तो ये सब है. उसके बाद फिर हमारी वैल्यूज़ और भी दी गई हैं, ये सब
ऑप्शनल होती हैं, अगर आप इसको देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो उस जगह के लिए यूज़ की जाती हैं। इसका देखिए क्या दिखा रहा है कि लेवल्स इन द पाइवट टेबल विल बी स्टोर्ड इन मल्टी इंडेक्स्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना, हायरार्किकल इंडेक्स्ड में ये स्टोर किया जाता है और डेटा फ्रेम जो है वो मल्टीपल कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये तैयार कर सकता है। तो ये हमारी जो है वो पाइवट टेबल फंक्शन थी जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। नाउ जस्ट बैक टू द पवेलियन। नाउ सी, पाइवट टेबल फंक्शन है, यहाँ पे इंडेक्स हमने कर दिया, ट्यूटर कॉलम्स है एंड वैल्यूज क्लासेस है। ठीक, पाइवट टेबल लगता ही देखिए हमारी चीज़ें जो है वो सामने एज इट इज़ आ गई। नाउ हियर वी हैव ट्यूटर अनुषा, गुरजोत, जैकब, ताहिरा एंड वेंकट, बट वी हैव लॉट ऑफ ट्यूटर्स एज इन आवर टेबल। नाउ सी, वी हैव 15 ट्यूटर्स, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ 5 दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब के सब जो हैं वो रिपीटेड हैं, डुप्लीकेट हैं। वी हैव यूनिक वैल्यूज़ लाइक ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जैकब, वेंकट ओनली, सो वी हैव ओनली 5 unique values. Okay, and another all tutors are the duplicate of the particular one. तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूटर्स जो हैं वो डुप्लीकेट होकर के आ रहे थे, दैट्स वाई कि यहाँ पे इसने बस इतना ही लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज द ब्राज़ील, जापान, यूके एंड यूएसए। वी ऑल्सो हैव द कॉलम्स विच हैज ऑल्सो द डुप्लीकेट वैल्यूज like Brazil, Japan, UK, USA. So these are the unique values and another all values are the duplicate of the first value. Now we have lots of values also. Now see about the Anusha, which is count the values for the Japan is 38.0, है ना। अनुषा जो है वो जापान के लिए 38.0 वैल्यू लेती है। अब देखते हैं कि क्या ऐसा है, अनुषा ने जापान के लिए 38 लिया है। अनुषा जापान के लिए 41 ले रही है, जापान है यहाँ पे 41 है, ठीक है। नेक्स्ट अनुषा को खोजते हैं, यहाँ पे भी जापान है और ये 41 है। नेक्स्ट अनुषा को खोजते हैं, यहाँ पे जापान है और ये 32 है, लेकिन हमारे वाले वैल्यूज़ में टेबल में वो 38 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो गाइस यहाँ चूँकि 3 अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं अनुषा के लिए जो कि जापान के लिए है, ठीक ना। तो अगर हम कोई एक वैल्यूज़ डालेंगे तो वो तो कन्फ्यूज़न में आएगा ही कि ये सिर्फ एक वैल्यू को लेता है, बाकियों को क्यों नहीं लेता। दैट्स वाई कि ये क्या करता है, ये इसकी मीन वैल्यू निकालता है, ठीक ना। तो मीन निकाल करके और वो मीन वैल्यूज़ जो होती है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 41 एंड यहाँ पे 41, इनकी मीन वैल्यू निकाली गई है जो कि 38.0 आया है। तो ये तरीका था। इसी तरह से बाकी लोगों के लिए भी मीन वैल्यूज़ निकल करके रखी गई हैं। नाउ नेक्स्ट we just use the another example which is related with the aggregate function. Now see this, and students please इन सब जितने भी फंक्शंस को आप यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, इन सारे फंक्शंस को अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिख करके रखिएगा और इनके जो सिंटैक्स हैं उसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मेन पेपर जब आएगा, फाइनल पेपर जब आएगा क्लास 12th का, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आपको बोली जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपके पास ये रहेगा, ये प्रैक्टिस में रहेगा, तो फिर आप इसको ईजिली कर पाओगे। ओके, तो ये देखिए एग्रीगेट फंक्शन है, यहाँ पे हमने काउंट फंक्शन लगा दिया। काउंट जो होता है वो प्रेजेंस को काउंट करता है कि कितनी बार वो प्रेजेंट है। तो अनुषा जो है वो 3 बार प्रेजेंट है, आपने देखा भी था अभी एग्जांपल में कि ये 3 जगह पे थी। इसी तरह से गुरजोत, जैकब एंड ताहिरा एंड वेंकट जो है ये सभी 3-3 जगह पे ही प्रेजेंट हुए हैं, इस वजह से सबकी वैल्यू 3 आ रही है। नेक्स्ट है sort value. Sort value, you know very well about the sorting, which is ascending and descending, and now the default value of the sorting is the ascending values. That's why we just use the country, means country से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे इसको शो करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे देखिए कंट्री में हमारा आ रहा है ब्राज़ील, फिर जापान आ गया, फिर यूके आ गया, फिर यूएसए आ गया। तो इस तरह से जो है वो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्सिंग किया हुआ है और असेंडिंग ऑर्डर पे इसने सेट कर दिया कंट्री वाइज, और सारी वैल्यूज़ जो हैं उस हिसाब से मैच कर गई। इस तरह से आप किसी और कॉलम को भी अगर चूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो यूज़ होगी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ट्यूटर को लेकर के, ट्यूटर से असेंडिंग हुआ है और यहाँ पे देखिए ए वाले पहले आ गए, फिर जी वाले आए, फिर जे वाले आए, फिर टी वाले आए, फिर वी वाले आए। तो इस तरह से ये आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द another example of the sorting, and we have
टू कॉलम्स इन द सॉर्टिंग, है ना। इंडेक्सिंग यहाँ पे जो सिंटेक्स जो है वो उसको आप देख लीजिएगा, बाय इक्वल टू काउंटर सॉरी कंट्री एंड ट्यूटर। और कंट्री और ट्यूटर ये पहले और दूसरी दिया हुआ, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो सॉर्टिंग होना है वो पहले कंट्री से होगा, फिर कंट्री के बीच में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी सॉर्टिंग ट्यूटर से होगी। तो ये कंट्री के लिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जैसे यूएसए की बात हो रही थी, यूएसए में देखिए यहाँ पे यूएसए इतनी है, और यूएसए में देखिए दो वैल्यूज़ आ रही है ट्यूटर की, एक ताहिरा है एक जैकब है, ठीक ना। तो ताहिरा और जैकब जो है ये आपस में इंडेक्स्ड होंगे। अभी सॉर्टिंग जो है उसमें देखिए असेंडिंग को फॉल्स कर दिया गया है, इसका मतलब है कि वैल्यूज़ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। देखिए यू वाले पहले आ गए हैं, बी वाले सबसे नीचे गए हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये इस यूएसए के लिए तो ताहिरा और जैकब है, तो टी पहले आ गया, जे बाद में आया, चूँकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तरीके थे जिसमें हम लोग सॉर्टिंग जो है वो ऐसे कर सकते हैं। Okay, thank you students. Please subscribe my channel and share as much as you can. Thank you and have a nice day.